हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं 5.7, अ वेरी पॉपुलर नॉवेल रिटन बाय चेतन भगत। इस नॉवेल के एमसीक्यूज नॉवेल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो फॉर्म में। पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आप एमसीक्यू वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर preparation and syllabus and other tips and tricks. Question number 1. Who is the primary narrator of 5 Point Someone? And the correct answer is Hari. The novel is mainly narrated by Hari with occasional passages from his friends Ryan and Alok also, and from the girlfriend of Hari, that is Neha Cherian. What is the main setting of the novel? An Indian Institute of Technology. Option B. The novel is set in the highly competitive environment of IIT. Next question. What is Ryan's attitude towards the IIT education? He is quite indifferent. समझ नहीं आता उन्हें वहाँ का environment and often challenges the authorities. आप लोग आमिर खान का कैरेक्टर थोड़ा याद कर सकते हैं रायन के कैरेक्टर्स को एसोसिएट करने के लिए। Of course, Amir Khan का character in the movie Three Idiots. Question 4. What is the academic score that the friends receive in the first semester? Approximately 5. तभी तो 5.7 है नॉवेल का नाम। The friends score a very average, even not wrong to say below average, 5 points out of 10 in the first semester, which is considered to be very poor. What does Ryan propose to improve their study habit? Ryan क्या propose करते हैं? Studying in a group for extended hours. Ryan suggest कि 2 से 3 घंटे की डेली ग्रुप स्टडी करते हैं, हमारे ग्रेड्स इम्प्रूव हो जाएंगे। How does Hari meet Neha? Answer is during a morning walk. Hari meets Neha during a morning walk when she gives him lift to college, and they continue these kind of strolls regularly. नेहा और प्रोफेसर चेरियन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, अभी ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा है, आपने वीडियो देख लिया है, आपने मे बी नॉवल पढ़ लिया है, नॉवल की समरी पढ़ ली है, बट एक लेमैन के लिए तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी डिफिकल्ट हो सकते हैं। कई बार तो सिर्फ राइटर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। 5.1 समवन किसने लिखा है? अभी मैं एक झारखंड एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ, तो डॉक्टर फॉस्टर्स किसने लिखा है, ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो हमें इजी एमसीक्यूज को मॉक नहीं करना है और टफ एमसीक्यूज को मिस नहीं करना है। ये दो एप्टीट्यूड्स लेकर चलेंगे ना हम, तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इजी चीज़ों को इतना इग्नोर करके चलते हैं कि कई बार वही हमें टफ लगने लगती हैं एग्ज़ाम्स में, और छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर तो आंसर वी नो इज़ फादर एंड डॉटर। What causes tension between Ryan and Alok? Ryan's indifferent attitude towards study. यहाँ पर भी आप वही एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं, रेंचो जिनसे उनके फ्रेंड एक बार नाराज होकर चतुर के रूम में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि रेंचो का व्यू पॉइंट क्वाइट डिफरेंट था फ्रॉम दी सो कॉल्ड normal behavior of a student of IIT. So tensions arises due to Ryan's casual approach towards studies of Alok's frustration with a poor academic performance. आलोक का रोल मूवी में प्ले किया था राजू रस्तोगी नाम के कैरेक्टर ने। What is the major turning point or trouble, you can say, in Alok's life? And that is the father's illness. Alok's father's illness is a major issue that reveals his financial struggles and motivates Ryan to help him. How does Neha's father react to discovering the truth about his son's death? काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं और अपने वेज को चेंज कर लेते हैं। Deeply affected by learning the truth about the son's death, and changes his perspective and behavior for a betterment. What is the main theme of 5 Point Someone?
द फ्लॉज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मूवी का भी यही मेन थीम रहा था, एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज दिखाना, एंड द सेम वॉज 5 Point Someone. The novel critiques the Indian education system that focuses on rote learning rather than creativity and innovation. Next question, how does Hari's relationship with Neha impact his academic performance? आईआईटी जैसे फील्ड में अगर एक लव अफेयर भी होगा तो कहीं ना कहीं किसी को बहुत कम, किसी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेगा एंड कंट्रीब्यूट्स टू हिज पुअर परफॉर्मेंस. व्हाट डज रायन डू टू हेल्प आलोक्स फैमिली? आलोक के फादर एक बार बीमार हो जाते हैं एंड रायन इज द वन हु अरेंजेस अ टैक्सी फॉर आलोक्स फादर टू टेक हिम टू हॉस्पिटल. So option B is the right answer. Next question, what does Hari discover about Neha's brother? He failed the IIT entrance exam and that is what became the reason of his further suicide. How does the novel 5 Point Someone end for the main characters? All of them face different outcome और mixed सक्सेस होती है. आईआईटी से आप बाहर जाएंगे तो जॉब तो मिल ही जाएगी, किसी को बहुत हाई प्रोफाइल, किसी को सो कॉल्ड अ लिटिल लो प्रोफाइल, एंड वी विल कॉल इट सक्सेस. तो मिक्स्ड सक्सेस मिलती है सब कैरेक्टर्स को. व्हाट रोल डज नेहा प्ले इन द नॉवेल्स क्लाइमेक्स? शी प्रोवाइड्स अ वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट हर ब्रदर्स डेथ. ऑप्शन सी. Question 17. What is the significance of the 5 Point Someone in the title of the novel? It refers to the grading system at IIT where 5 point is considered to be a low grade और जिस भी स्टूडेंट के approximately 5 points आते हैं उनको एक टाइटल दे दिया जाता है, he is 5 Point Someone. Question 18. What is the main reason for the friends' poor academic performance? सबके पर्सनल इश्यूज हैं और अपने अपने डिस्ट्रैक्शंस है मेजरली. दिस इज द बेस्ट आंसर हियर. दिस इज एन इजी क्वेश्चंस, लेकिन वही मैंने आपको समझाया था शुरुआत में कि इजी क्वेश्चंस को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. बहुत बार हम लोग बहुत से इजी कंसेप्ट्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं. Anyone who agrees with me, please support me with a comment in comment section. 3 Idiots हैं यहाँ पर. Right name. Although ये सभी नाम जो है मूवीज के, they are based upon novels by Chetan Bhagat. Hello was One Night Call Center. Kai Puche was 3 Mistakes of My Life and Half Girlfriend. The same name, Half Girlfriend. Next question. How does Ryan's project contribute to the story? It highlights his innovative thinking. Ryan मे बी थियरी पर्सन नहीं है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है. रायन का प्रोजेक्ट है डिजाइनिंग अ कार दैट रन्स ऑन ऑल्टरनेट फ्यूल. इट शोकेसेस हिज क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग. हरी के कैरेक्टर की क्या स्ट्रगल है? हरी इज शोन टू बी मोस्ट इमोशनल पर्सन आउट ऑफ ऑल दीज फ्रेंड्स. तो उनके इमोशंस और उसके साथ साथ एकेडमिक प्रेशर, दैट इज द बेस्ट आंसर हियर. हाउ डज आलोक एंड हरीज करियर आउटकम्स डिफर फ्रॉम रायन्स? आलोक और हरी को कंपैरेटिवली हायर पेइंग जॉब्स मिल जाती है और रायन को बाय द एंड एक लोअर पेइंग जॉब मिल जाती है. बट आई होप ऑल ऑफ देम should get the job satisfaction. What significant event causes Alok to attempt suicide? And that was failure in exam. Alok attempts suicide after a series of academic failures and personal disappointments. What does Neha give Hari to keep away from her father? Her brother's suicide नोट. उनके फादर को, प्रोफेसर चेरियन को तो बहुत टाइम तक पता ही नहीं होता है कि बेटे ने सुसाइड किया था, दैट टू आउट ऑफ द प्रेशर ऑफ आईआईटी स्टडीज.
How does Professor Cherian's view of Ryan and his friends change by the end of the novel? उनका एटीट्यूड चेंज हो ही जाता है अपने बेटे के बारे में जानने के बाद. He becomes more supportive and acknowledges the efforts. What is the primary conflict or struggle in the novel? सभी फ्रेंड्स का स्ट्रगल एकेडमिक प्रेशर के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ, और यही पूरे नॉवेल की थीम भी है, यही थ्री इडियट्स की थीम भी है. हाउ डज द प्रोटैगनिस्ट हरी चेंज बाय द एंड ऑफ द नॉवेल? ही गेन्स better understanding of his own strengths and limitations. अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और जो एक प्रेशर था कि आई वांट टू अचीव दिस, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी ही है. जब आप एक चीज़ को अपना बहुत हार्ड गोल बना लेते हैं, देन द लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट. बट इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग लाइफ ईजी इन एन ईजियर वे, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को जानते हुए आप आगे बढ़ते हैं slowly and steadily, then you win the race. And he gains that sort of better understanding about himself. What does Ryan's character symbolize in the novel? The conflict between personal passion and academic demands. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग ऑफ बुक के रूल्स के अकॉर्डिंग ना चलकर कुछ अच्छा करना, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं विदाउट मेकिंग एनी हार्म टू एनी वन ऑफ कोर्स. और एकेडमिक डिमांड्स आपकी कुछ और होती हैं. तो उन एकेडमिक डिमांड्स और पर्सनल पैशन के बीच ही एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर रायन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेट्स हरी एंड रायन टू प्लान अ सरप्राइज विजिट टू नेहा's रूम? They wanted to give her some gifts for her birthday, of course. Next question, how does the story of 5.1 end with respect to education system? Education system को critique करता है पूरा novel for prioritizing rote learning over creativity. और I'll say कि 2009 में ये मूवी रिलीज हुई थी और उसके बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए भी हैं. I'll not say कि everything changed for a good, और I'll say कि ठीक से implement नहीं हो पाया. बहुत projects बहुत ही ज़्यादा आने लगे और इतने ज़्यादा कि they were to be covered or done by parents rather than the kids. तो creativity आई लेकिन उसका purpose solve नहीं हो पाया. As a teacher I have experienced, as a mother I have experienced all that. दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी. यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम.